Welcome to Jigyasu Online Classes. In today's class, we are going to discuss about the differentiation. So let's start with the definition of derivative of a function. If we are given that y is a function of x, it means the variable y depends on the variable x under the rule f. So if we change x, then y will also change. Let us change x by the amount delta x, then x becomes x plus delta x. If you change x by the amount delta x, then there will be a change, respective change in y also. Let's denote that change in y as delta y. Then finally y becomes y plus delta y. So if y is equal to f of x, then y plus delta y will be equal to f of x plus delta x. From 1 and 2, if we subtract 1 from 2, then you get y plus delta y minus y is equal to f of x plus delta x minus f of x. So from this, we get delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. So, what is the meaning of derivative of a function? Derivative of y with respect to x means rate of change of y with respect to x. If we change x by the amount delta x, then we have denoted the respective change in y as delta y. तो अगर आप x को 1 यूनिट चेंज करते तो y में कितना चेंज होता? That change in y is termed as rate of change of y with respect to x. अगर आपने x को चेंज किया delta x, then respective change in y is delta y. If you change x by 1 unit, then y में change कितना होगा? Delta y by delta x. इसको आप क्या बोलते हो? Rate of change of y with respect to x. इसी को हम derivative of y with respect to x भी बोलते हैं. तो अब यहां पर क्या होगा? This rate is also variable. If this rate is also a variable quantity, तो हम क्या करेंगे? एक कंडीशन अप्लाई करेंगे. वो क्या है बच्चों? Limit of this delta y by delta x when delta x tends to 0. ये हमारा क्या है? इसको हम क्या डिनोट करते हैं? We denote this as dy by dx. तो ये क्या है? Instantaneous rate of change of y with respect to x. इसी को नेम क्या दिया है हम लोगों ने? डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. तो अब यहां से बच्चों डेरिवेटिव dy by dx क्या आ गया? dy by dx आ गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0. डेल्टा y आपको अभी बताया था मैंने, f of x plus delta x minus f of x upon delta x. So this is the basic definition of derivative of a function with respect to x. Y is what? Y is f of x. So derivative of this f of x is equal to limit delta x tends to 0, f of x plus delta x minus f of x upon delta x. If you find the derivative of the function from this formula, then this process is called as to finding the derivative from the first principle, from the ab initio method. आपकी एनसीईआरटी में ये जो मैंने चेंज किया x को जो चेंज किया है बाय द अमाउंट डेल्टा x, उस चेंज को उन्होंने डिनोट किया है बाय द सिंबल h. तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy dx of f of x is equal to limit x tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h. This is the formula to find the derivative of a function with respect to x from the first principle. First, अगर आपसे पूछा जाए, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा find the derivative of a function from the first principle, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है. तो एक कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, find the derivative of f of x is equal to root x
with respect to x from first principle, या ऐसे लिखा गया होगा और फ्रॉम ab initio मेथड, ab initio मेथड। तो जब कभी भी ये गिवन हो कि फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल और फ्रॉम द ab initio मेथड you have to find the derivative of a function, so we always use this formula. First of all, you note down this formula: derivative of f of x with respect to x is equal to limit x tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। यहां पर बच्चों फंक्शन क्या गिवन है? f of x is equal to root x। तो क्या करना होगा आपको? यहां f of x तो गिवन है, f of x plus h पता करना होगा। f of x plus h कैसे पता करेंगे आप? ये f of x जो गिवन है, फंक्शन में जहां जहां भी x मिलेगा यू हैव टू रिप्लेस दैट बाय x plus h। तो नेक्स्ट उसमें आपको मैं इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव सॉल्व करना बताने वाला हूं। फंक्शन गिवन है रूट x, हमें क्या करना चाहिए? f of x plus h पता कर लेना चाहिए, क्या आ जाएगा? रूट x plus h। Then write the formula to find the derivative of a function with respect to x. You have to write down this formula: derivative of f of x is equal to limit x tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. Up now you put the values in this formula. So f of x is what? That is root x. So derivative of root x is equal to limit x tends to 0. What is f of x plus h? पता कर रखा है आपने, रूट x plus h माइनस f of x कितना है? रूट x अपॉन h। तो क्या होगा भाई? अब तो ये क्वेश्चन लिमिट का है ना, क्या करेंगे आप? यू ऑल नो हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस टाइप ऑफ लिमिट। तो क्या करना है? रैशनलाइजेशन मेथड यूज करिए टू फाइंड दिस लिमिट। तो न्यूमरेटर का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा रूट x प्लस h माइनस रूट x इनटू रूट x प्लस h प्लस रूट x। तो यहां पर क्या मिलने वाला है? रूट x प्लस h प्लस रूट x। और बच्चों वहां न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इन नेक्स्ट स्टेप ये क्या आ जाएगा? x प्लस h माइनस x। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये आ गया बच्चों लिमिट x प्लस h माइनस x अपॉन, यहां x था और ये रूट x प्लस h प्लस रूट x। तो x टेंड्स टू 0। नेक्स्ट क्या करना है? ये आपका चल रहा है डेरिवेटिव ऑफ रूट x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया बच्चों x माइनस x 0 हो गया, h अपॉन h, h अपॉन h, h इज नॉट 0, h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका है। तो h अपॉन h क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर फाइनली नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट x प्लस h प्लस रूट x। अब क्या है बच्चों? यहां पर इस स्टेप तक अगर आप h 0 रख देते तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता, नहीं रखना है। कब आप h इक्वल टू 0 रख सकते हैं? जब 0 डिनोमिनेटर में 0 ना आ रहा हो। तो देखो h 0 अगर मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा तो अब तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। तो आप इस लिमिट को पता करने के लिए क्या करेंगे? एट देन h इज इक्वल टू 0 पूरे फंक्शन में रख देंगे। सो यू विल गेट द लिमिट ऑफ दिस लिमिट यू विल गेट। तो क्या आएगा बच्चों? h 0 रख दिया तो आएगा 1 अपॉन रूट x प्लस रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x। इस तरीके से आपको पता चल गया हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। मैंने एक फंक्शन लिया रूट x, मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या किया गया है। देखो पहले आपको ये पूरा फार्मूला लिखना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। नोट डाउन दिस फार्मूला, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, अब एक फंक्शन दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव पता करो फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्या करना है?
आपको इस फॉर्मूला में जो रिक्वायर्ड है वो आप पहले फंक्शन की हेल्प से पता कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहां से पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया क्या करना होता है, जहां जहां भी फंक्शन में एक्स है उसको आप रिप्लेस कर दो बाई एक्स प्लस एच, तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ है, देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच पता किया, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में वैल्यू रखी, तो अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, रैशनलाइजेशन मेथड यूज किया। तो न्यूमरेटर का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी, तो आप यहां तक पहुंच जाओ। अब न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करोगे तो रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर करोगे तो एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या वहां पहुंच जाएंगे, यहां देखो x और x कैंसिल आउट हो गया, या x माइनस एक्स जीरो हो गया, फिर आएगा h अपॉन h रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। h इज नॉट जीरो, h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। मैंने बताया था कि h इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, तो h बाई h 1 हो गया, फिर आप यहां पर पहुंच जाएंगे। अब आप h इज इक्वल टू 0 रख देंगे पूरे फंक्शन में, तो आपको ये लिमिट मिल जाएगी। तो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स पता चल गया, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब मैं आपको कोई भी एक फंक्शन दूंगा और आपसे बोलूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव पता करिए। लेट्स डिस्कस डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। यहां पर फंक्शन मैंने क्या लिया है बच्चों, sin x। sin x का डेरिवेटिव पता करना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम द ab initio मेथड, फ्रॉम डेफिनेशन। तो क्या करना है आपको, आपको यहां पर f ऑफ x प्लस h पता कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, sin x प्लस h। You have to write the formula. Derivative of f of x is equal to limit f of x plus h minus f of x upon h tends to 0. Now you put the values in this formula. तो f of x क्या है, sin x, so derivative of sin x is equal to limit h tends to 0. f of x plus h क्या है बच्चों, sin x plus h minus f of x क्या है, sin x अपॉन h। तो अब जो राइट हैंड साइड में कंटेंट है वो तो लिमिट को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। यहां पर अगर मुझे इस लिमिट को पता करना है तो मैं sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो अब आपको sin c माइनस sin d का फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों, और यहां पर आप sin c माइनस sin d यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 अपॉन में h। तो अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स, 2x बाई 2 आएगा x, तो यहां पर ही लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा बच्चों, या नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूं। फाइनली नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा डी dx ऑफ sin x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 2 cos x प्लस h बाई 2 है, और ये देखो भाई यहां पर 2 cos x प्लस h 2x बाई 2 तो x हो गया प्लस h बाई 2, और यहाँ x माइनस x 0 हो गया, h बाई 2 आ गया, सो ये आ जाएगा इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h। आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो यहां तक पहुंच जाओगे। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला याद करना है, वो अप्लाई करोगे आप यहां पर पहुंच जाओगे। एक लिमिट का फॉर्मूला आपको बताया गया है, साइन थीटा अपॉन थीटा, ये बच्चों यहां पर लिख रहा हूं, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये लिमिट अगर आपको अप्लाई करना है
साइन थीटा अपॉन थीटा होना चाहिए। तो यहाँ साइन थीटा तो एच, थीटा क्या है, h/2 है, डिनोमिनेटर में भी h/2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, अभी तो नहीं है, तो क्या करना चाहिए, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ मुझे h/2 चाहिए, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो, ये साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0, h टेंस टू 0 है, तो h/2 टेंस टू 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2/2 1 हो गया, h टेंस टू 0 यहां रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या मिल गया, cos x। आपको ऐसे भी, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट d or dx of sin x is equal to cos x। Now we will use this as a formula। जब कभी फर्स्ट प्रिंसिपल से पता करना होगा डेरिवेटिव, तो हम पूरा प्रोसीजर यूज करेंगे, और अदरवाइज हम लोग इसको एज अ फार्मूला यूज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ sin x is equal to cos x। Similarly, we can find the derivative of all functions, all trigonometrical ratios, 6 trigonometrical ratios पता है, उन सभी के डेरिवेटिव हम लोग पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो एक आपको cos x का पता करना होगा, खुद करिए cos x का डेरिवेटिव। मैं tan x का डेरिवेटिव भी बताता हूं कैसे पता करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to tan x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम tan x का डेरिवेटिव कैसे पता करेंगे। तो क्या करना होता है, आपको f of x plus h पता करना चाहिए। ये क्या आ जाएगा, tan x plus h। f of x tan x है, तो f of x plus h क्या हो जाएगा, tan x plus h। जहां जहां भी x है वहां पर x plus h हो जाना है। फिर क्या करना है, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। फिर क्या करना है, अब तो ये फार्मूला में ये सारी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आ जाएगा, d or dx of f of x कितना है, tan x, d or dx of tan x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h is what, tan x plus h minus f of x कितना है, tan x अपॉन h। तो अब तो कोई tan, यहां पर क्या करना है, इस लिमिट को पता करने के लिए क्या करेंगे आप, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। साइन एंड कॉस में अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x plus h अपॉन cos x plus h माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन में h। अब क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर में आपको एलसीएम लेना है और सिंपलीफाई करना है। तो मैं यहां पर सिंपलीफाई कर रहा हूं, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो एलसीएम क्या लेंगे आप, cos x plus h इन cos x लेंगे, cos x plus h into cos x। तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा sin x plus h, sin x plus h into cos x माइनस, ये तो खुद करेंगे भाई, माइनस cos x plus h into sin x। और ये h अपॉन 1 होता, मल्टीप्लीकेशन लिख देते तो 1 अपॉन h, तो यहां पर है। अब क्या करेंगे आप, यहां देखो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, sin a cos b माइनस cos a sin b की आइडेंटिटी यूज हो रही है। आप इस आइडेंटिटी को यूज करो तो ये क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और sin a cos b माइनस cos a sin b होता है sin a माइनस b अपॉन cos x plus h into cos x into h। तो ये देखो x plus h minus x x कैंसिल आउट हो जाएगा, sin h बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा sin h अपॉन h तो है ही, और यहां पर cos x plus h into cos x, h tends to 0। नेक्स्ट देखिए sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, तो sin थीटा अपॉन थीटा ये 1 हो गया। और फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप में लिमिट 1 अपॉन cos x plus h into cos x, h tends to 0। अब बच्चों h tends to 0 है, डिनोमिनेटर में तो h की वैल्यू 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है,
तो आपको इस लिमिट को पता करना है, अगर तो h की वैल्यू 0 रख दीजिए पूरे फंक्शन में और आपको लिमिट मिल जाएगी। तो क्या आ जाएगा, h 0 रखेंगे तो ये बचेगा क्या, 1 अपॉन cos x इंटू cos x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x। सो डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना आ गया बच्चों, sec स्क्वायर x। आप इस तरीके से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पता कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan x हमने पता कर लिया, दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो अब रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता कर लेना है। मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा फंक्शन है इस बार f of x इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव पता करना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्या करना होगा, आपको जो बताया गया है इसकी हेल्प से आप f of x plus h पता कर लेंगे। f of x गिवन है तो f of x plus h आप पता कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, x plus h इंटू साइन x plus h। फिर फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूला क्या है, dy dx of f of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, h tends to 0. Now you put the values in this, तो क्या आएगा, dy dx of f of x कितना है, x sin x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h, that is x plus h sin x plus h minus f of x क्या है, x sin x upon h। अब तो थोड़ा सा इस स्टेप पर ध्यान देना है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो ये x प्लस h से पूरा मल्टीप्लाइड है, तो x इंटू दिस प्लस h इंटू दिस, ये आपको स्टेप ध्यान रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा x साइन x प्लस h प्लस h साइन x प्लस h माइनस x साइन अपॉन h। इसके बाद देखो बच्चों, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में x कॉमन है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिखना है और फिर हमें x कॉमन लेना है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूं इसको, वो क्या आ जाएगा, या एक काम करते हैं, ये वाले स्टेप तो नोट कर लिए होंगे आपने। f of x दिया था x sin x, f of x plus h हमारा आ गया x plus h sin x plus h, और ये फॉर्मूला, इस पार्ट को मैं हटा रहा हूं यहां से और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है अभी आपका उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या आ गया बच्चों, यहां पर dy dx of x sin x आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो भाई इन दोनों को एक साथ लिखा, x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो क्या आ गया, sin x प्लस h माइनस sin x, और ये प्लस h sin x प्लस h अलग से लिख दिया, h sin x प्लस h अपॉन में है h। अब क्या करना है, यहां पर इसमें sin c माइनस sin d यूज करिए, तो क्या आएगा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या बताया गया है, 2 cos c प्लस d बाई 2, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x प्लस h बाई 2 आ जाएगा इंटू साइन c माइनस d बाई 2, वो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, ये साइन h बाई 2 आ जाएगा अपॉन h, इसके साथ भी है प्लस h साइन x प्लस h अपॉन h, ये मैंने अलग कर दिया। और अब बच्चों आपको समझ में आ गया क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए, यहां देखो साइन थीटा अपॉन थीटा बनाया जा सकता है, थीटा है वहां पर h बाई 2, यहां पर भी h बाई 2 बनाया जा सकता है। क्या किया यहां पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, और यहां देखो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 हो जाना है, फिर h की वैल्यू 0 यहां रखेंगे तो ये बचेगा क्या, ये अब 2 अपॉन 2 ये 1 हो गया, तो बच जाएगा x, h 0 रख दोगे ना तो cos x cos x। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे प्लस यहां पर h अपॉन h 1 हो जाएगा, h 0 रख दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो फिर क्या आ जाएगा प्लस साइन x। तो बच्चों x sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, वो आ गया है x cos x प्लस sin x। तो इस तरीके से बच्चों आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया
कि डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम लोग कैसे यूज करते हैं उस डेफिनेशन को टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके एप्लीकेशंस की बात करूंगा कि अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं पता करना चाहता किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या टूल्स हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। कीप ऑन वाचिंग द वीडियोस, आपको ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन इस सीरीज में आपको बता दिया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।